السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں ہمارے چینل شم رسالت کی جانب سے مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایپیسوڈ نمبر 50، قسط نمبر 50۔ ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سریہ۔ ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ان کو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا زاد بھائی بتایا ہے، مگر پہلی بات زیادہ مشہور ہے۔ اوطاس حنین اور طائف کے درمیان ایک معروف میدان ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ کو جھنڈا دے کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی ایک جماعت پر امیر مقرر کیا، اور جو لوگ حنین سے بھاگ کر اوطاس میں جمع ہو گئے تھے ان کی سرکوبی کے لیے ان کو بھیجا۔ وہاں ان بھگوڑوں سے لڑائی ہوئی، تیر لگنے سے ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت واقع ہو گئی۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی اور کفار کے حصہ میں شکست آئی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک لشکر دے کر اوطاس کی طرف بھیجا۔ وہاں درید بن سما اور اس کے ساتھیوں سے مقابلہ ہوا۔ درید بن سما قتل ہو گیا اور اس کے ساتھی شکست کھا کر بھاگ گئے۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی ابو عامر کے ساتھ بھیجا تھا۔ جنگ میں ابو عامر کے گھٹنے میں تیر لگنے لگا۔ میں نے ان کو دیکھا تو پوچھا، چچا آپ کو یہ تیر کس نے مارا ہے؟ انہوں نے ایک طرف اشارہ کیا اور کہا اس آدمی نے مجھے تیر مارا ہے۔ میں اس کی طرف گیا تو وہ مجھے دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ میں بھی اس کے پیچھے دوڑا اور اس کو آواز دی، تجھے بھاگتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کھڑے ہو کر مقابلہ کرو۔ وہ آواز سن کر رک گیا اور ہم لڑنے لگے۔ میں نے تلوار کے ایک بار سے اس کا کام تمام کر دیا اور ابو عامر رضی اللہ عنہ سے آ کر کہا، میں نے آپ کے قاتل کو قتل کر آیا ہوں۔ وہ بولے، میرے گھٹنے سے تیر نکالو۔ میں نے تیرا تیر نکالا تو ان کے جسم سے خون کے بجائے پانی بہ نکلا۔ انہوں نے کہا، بھتیجے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے السلام علیکم عرض کرنا اور کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بخشش کی دعا کریں۔ پھر ابو عامر رضی اللہ عنہ نے مجھے لشکر پر امیر مقرر کیا اور تھوڑی دیر بعد جان شیریں جہاں فریق کے سپرد کی۔ پھر میں واپس آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ میں داخل ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ننگی چرپائی پر آرام فرما تھے۔ چرپائی کی رسیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت اور پہلو پر نشان ڈال دیے تھے۔ میں نے جنگ کا موقع بیان کیا اور ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کی خبر سنائی اور کہا، وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں بخشش کی دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگا کر وضو کیا اور پھر ہاتھ اٹھا کر یوں دعا فرمائی، الہی اپنے بندے ابو عامر کو بخش دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی دیکھی تھی۔ پھر فرمایا، الہی قیامت کے دن اپنی بہت سی مخلوق سے اس کو بلند مرتبہ عطا فرما۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی بخشش کی دعا فرمائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اپنے بندے عبداللہ بن قیس کے گناہ بخش دے اور اس کو قیامت کے دن عزت والے مقام میں داخل فرما۔ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے اور دوسری ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں اور غنیمتوں کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ ان کو جمع کر کے طائف کی مہم سے فارغ ہونے تک محفوظ کیا۔ قیدی 6000 اونٹ، 24000 بکریاں، 4000 سے زیادہ اور چاندی 4000 اوقیہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمتوں کی نگرانی پر مسعود بن عمرو غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو نگران مقرر فرمایا تھا۔ ابن حشام لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنگ حنین کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 25۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سی جنگوں میں تمہاری مدد فرمائی اور حنین کی جنگ میں بھی، جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز تھا مگر اس نے تمہیں کچھ فائدہ نہ پہنچایا۔ روایت میں آیا ہے کہ مسلمانوں کو حنین اور اوطاس میں بہت سی قیدی عورتیں ملی جن سے ہم بستری کرنے کو اس لیے مکروہ سمجھتے تھے کہ وہ شادی شدہ ہیں اور ان کے خاوند موجود ہیں۔ انہوں نے اس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، والمحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، یعنی شادی شدہ عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں مگر جو تمہاری قید میں ہیں اور تم ان کے مالک بن گئے ہو وہ حلال ہیں۔ غرض یہ ہے کہ جو جنگ میں قید ہو گئی ہیں اور تقسیم کے بعد تمہارے حصہ میں آ گئی ہیں، گو ان کے کافر خاوند زندہ ہیں، وہ قید کرنے والوں کے لیے حلال ہیں۔ قیدی بننے سے ان کا نکاح ختم ہو گیا ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جنگ اوطاس میں بہت سی قیدی عورتیں ہمارے ہاتھ آئیں، ان کے خاوند موجود تھے، اس لیے ہم نے ان سے بستری کو ناجائز سمجھا۔ اس کے متعلق
हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मज़कूरा बाला आयत नाजिल हुई। फिर हमने इनको अपने लिए हलाल समझा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अवतास की लोनियों के मुताल्लिक हुक्म जारी किया कि किसी हामिला औरत से जब तक इसे बच्चा न पैदा हो ले हम बिस्तरी ना की जाए, और गैर हामिला से हम बिस्तरी के बारे में एक हैज़ का इंतज़ार किया जाए। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अजमाइन ने आपसे उज़ल के बारे में पूछा तो आपने फरमाया हर पानी से बच्चा पैदा नहीं होता। जब अल्लाह ताला किसी बच्चा को पैदा करना चाहता है इसे कोई चीज़ नहीं रोक सकती। कैदी औरतों में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी थी। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपकी रज़ाई बहन हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका क्या सबूत है? बोली इसका सबूत ये है कि मैंने आपको उठाया हुआ था और आपने मेरी पुष्ट पर अपने दांतों से काटा था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये निशान देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर बिछाकर उनको इस पर बिठाया। एक रिवायत में है कि उन्हें देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और उनको इख्तियार दिया कि अगर मेरे पास रहना चाहें तो शौक से रह सकती है। हर तरह से आपका एहतराम और इकराम मलहूज रहेगा, और अगर आप जाना चाहती हैं तो मैं आपको माल और मता देता हूँ, अपनी कौम में चली जाएं। उन्होंने कहा मैं अपनी कौम में जाना चाहती हूँ। उन्होंने इस्लाम कबूल किया और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तोहफे ताइफ देकर वापस भेज दिया। बनु साद कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको एक गुलाम और एक लोंडी दी। गुलाम का नाम मकबूल था। शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इन दोनों की बहम शादी कर दी और इनकी औलाद इनमें बाकी रही। मवाहिब में लिखा है कि हुनैन के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ हलीमा सादिया दोख्तरे अबू ज़ब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। ये बनु हवाज़न से ताल्लुक़ रखती थी। इन्हीं ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे 2 साल दूध पिलाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको देखा तो अपनी चादर बिछा दी और बड़े एहतराम के साथ उनको बिठाया। सोयबा की तरह उनके और उनके खावंद के इस्लाम लाने में भी इख्तलाफ है। सही बुखारी में अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग हुनैन में शरीक हुए। पहले पहल मुसलमानों को शिकस्त हुई। मैंने देखा कि एक मुशरिक एक मुसलमान के करीब पहुंच चुका है और इसको कत्ल करना चाहता है। मैंने पीछे से इसको कंधे पर तलवार मारी जिससे इसकी ज़रा और कुछ कंधा भी कट गया। वो पीछे मुड़कर मुझसे लिपट गया और मुझे इस कदर भींचा कि मुझे मौत नजर आने लगी। फिर वो जख्मों की ताब न लाकर गिर पड़ा और दम तोड़ गया। मेरी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला से मुलाकात हुई तो मैंने कहा लोगों को क्या हुआ? बोले अल्लाह का हुक्म। फिर लोग वापस आए और अल्लाह ताला ने फतह अता फरमाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गनीमत तकसीम करने के लिए बैठे तो फरमाया जिसने कोई आदमी कत्ल किया हो और उसके पास इसका कोई सबूत हो तो उसका सल्ब मकतूल का माल व असबाब इसको मिल जाएगा। मैंने खड़े होकर कहा मेरे हक में कोई गवाही देता है? फिर मैं बैठ गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा ऐलान किया। मैंने कहा मेरे हक में कौन गवाही देता है देगा? मैं फिर बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मरतबा फिर ऐलान फरमाया। मैंने फिर खड़े होकर कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू कतादा क्या बात है? इस वक्त एक आदमी बोला हुजूर ये ठीक कहता है, जिस आदमी को इसने कत्ल किया है इसका सलब मेरे पास है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको राजी कर दें कि ये अब वो सलब मेरे पास रहने दे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला पास खड़े थे। वो बोले बखुदा ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के शेर का जिसने अल्लाह की राह में इसके रसूल से मिलकर जहाद किया है सलब तुझे नहीं देंगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने दुरुस्त कहा है, इसका सलब इसको दे दो। चुनांचा इसने वो सलब मुझे दे दिया जिसको बेचकर मैंने बनु सलमा में एक बाग खरीदा और ये मेरी पहली जायदाद है जो इस्लाम लाने के बाद मैंने पैदा की। हुनैन की जंग में सिर्फ 4 मुसलमान शहीद हुए। नंबर 1 ऐमन बिन उम्मे ऐमन, नंबर 2 यजीद बिन ज़मा बिन अस्वद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नंबर 3 सराका बिन हारिस अंसारी रज़ी अल्लाह तआला, नंबर 4 अबू आमिर अशरी रज़ी अल्लाह तआला। और मुशरिकों के 70 से ज़्यादा आदमी कत्ल हुए। ग़ज़वा ताइफ जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ की तरफ जाने का इरादा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोफैल बिन उमरु दोसी को उमरु बिन जमहा का लकड़ी का बुत तोड़ने के लिए भेजा जिसको ज़वाल कफीन कहा जाता था और इनको ताकीद की कि इधर से फारग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर ताइफ में मिले। तो फैल रज़ी अल्लाह तआला बहुत जल्द वहाँ गए, इसको तोड़ा और फिर आग लगाकर सारा बुतखाना जला दिया। साथ ये शेर पढ़ते थे ए ज़ुल कफीन मैं तेरा पुजारी नहीं हूँ, हमारी पैदाइश तेरी पैदाइश से बहुत पहले है, मैंने तेरे दिल में आग भर दी है। इनके साथ इनकी कौम के 400 आदमी आए और आपके ताइफ में आने के 4 दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। आते वक्त अपने साथ कला तोड़ने का हथियार मुंजनी के और दबाबा भी साथ लाए। दबाबा का लफ्ज़
با کی تشدید اور دال محملہ کے ساتھ ہے۔ دبابہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے اندر داخل ہو کر قلعہ کی دیواریں کھودی جاتی ہیں۔ وہ رخیم لکھتے ہیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 10 شوال 8 ہجری کو حنین سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوازن اور ثقیف کے مشترک بھگوڑوں کی سرکوبی کے لیے طائف کا رخ کیا، جو حنین سے شکست کھانے کے بعد یہاں آ کر قلعہ بند ہو گئے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ 1000 جان بازوں کے ساتھ بطور مقدمہ الجیش آپ کے آگے آگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو جاتے ہوئے نخلا یمانیہ، پھر کرن المنازل اور نہرا اور رعا سے ہوتے ہوئے لیا پہنچے، وہاں مسجد بنائی اور اس میں نماز ادا فرمائی۔ وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضیر کے ایک آدمی کو کہ قصاص نے بنو لیس کا ایک آدمی قتل کیا، اور یہ پہلا قتل ہے جس کا اسلام میں قصاص دیا گیا۔ آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالک بن عوف کے قلعہ میں پر پہنچے، اس کو مسمار کرا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستہ پر چلے تو پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ بتایا گیا اس کا نام ضیقہ تنگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد اس کا نام الیسرا ہے۔ پھر وہاں سے رخصت ہو کر آپ ثقیف کے ایک آدمی کے باغ کے قریب بیری کے ایک درخت کے نیچے اترے اور اس آدمی کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ باغ سے نکل جائے ورنہ اس باغ کو ویران کر دیا جائے گا۔ اس نے نکلنے سے انکار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ویران کرنے کا حکم دے دیا۔ پھر وہاں سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچی اور قلعہ کے پاس اپنا کیمپ لگا دیا۔ قلعہ میں بند دشمن نے مسلمانوں پر اس قدر تیر چلائے جیسے ٹڈی دل اتر رہا ہو۔ کافی تعداد میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین زخمی ہوئے اور 12 آدمیوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ عبداللہ بن ابی امیہ بھی تھے۔ اس دن عبداللہ بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بھی تیر لگا، ان کا زخم مندمل ہو گیا، لیکن کافی عرصہ بعد وہ زخم دوبارہ ہرا ہو گیا اور اسی کے صدمہ سے وہ اپنے والد کی خلافت میں انتقال کر گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعہ کے نزدیک سے اپنا کیمپ اٹھا لیا اور دور جہاں آج کل طائف کی مسجد واقع ہے فروکش ہوئے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امہات المومنین میں سے ام سلمہ اور زینب رضی اللہ تعالیٰ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 2 الگ الگ خیمے نصب کرائے اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ جاری رکھا ان دونوں کے درمیان واقع ہونے والے پلاٹ میں نماز پڑھتے رہے۔ صحیح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سے کچھ دن زیادہ محاصرہ جاری رکھا اور ایک روایت میں ہے کہ 20 سے کچھ دن زیادہ محاصرہ جاری رہا۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں ہے کہ ہم نے اہل طائف کا 40 دن محاصرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف پر منجنیق نصب کیا اور اس کے ذریعہ قلعہ پر پتھر پھینک کے اسلام میں منجنیق کا استعمال پہل اسی محاصرہ میں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ثقیف کے انگور کاٹنے اور ان کو آگ لگا دینے کا حکم دیا۔ مسلمانوں نے اس حکم کی تعمیل میں ان کے بہت سے باغ ویران کر دیے۔ پھر اہل طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر اس کارروائی کو بند کرنے کی درخواست کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمائی اور فرمایا میں اللہ تعالیٰ اور رشتہ داری کا لحاظ کرتا ہوں، اس کارروائی کو بند کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کرائی کہ جو غلام قلعہ سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے گا وہ آزاد ہے۔ یہ حکم سن کر 10 سے زیادہ غلام موقع پا کر فرار ہوئے۔ ان میں مشہور صحابی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے، ان کا نام نکی بن حارث تھا، جو نکی بن حارث ہے۔ یہ طائف کی دیوار سے پانی نکالنے والی چرخی کے ذریعے نیچے اترے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو بکرہ رکھ دی۔ جو غلام قلعہ سے اتر کر اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو آزاد کر دیا تھا اور ان کے طعام و قیام کا انتظام کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آدمی مسلمانوں کے ایک آدمی کے سپرد کر دیا۔ اہل طائف کو یہ واقعہ بہت گراں گزرا، اس لیے اہل طائف کے مسلمان ہونے کے بعد ان میں سے ایک جماعت نے ان کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئکا اکا اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سال طائف کی فتح مقدر میں نہیں تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف فتح کیے بغیر محاصرہ اٹھا لیا۔ صحیح بخاری میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اس وقت گھر میں ایک مہنث تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا وہ میرے بھائی عبداللہ بن ابی امیہ سے کہہ رہا تھا اگر کل طائف فتح ہوا تو غیلان کی بیٹی کو ضرور دیکھنا، وہ بڑی حسین و جمیل ہے، وہ آتی ہے تو اس کے پیٹ پر 4 شکنیں پڑتی ہیں اور جاتی ہے تو 8 شکنیں ظاہر ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ یہ آپ کے پاس گھر نہ آیا کرے، اور بخاری کی ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت طائف کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمرو کی یہ روایت بھی ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا اور کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انشاءاللہ کل محاصرہ اٹھا کر واپس جائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ پر یہ بات شاپ گزری، وہ کہنے لگی ہم طائف فتح کیے بغیر ہی واپس جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کل دشمن سے لڑنے کے لیے نکلو۔ چنانچہ وہ دشمن کے مقابلہ میں آئے تو ان کو بہت
जख्म लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया हम कल इंशाअल्लाह वापस चलेंगे। अब तो वो बहुत खुश हुए और ये देखकर आप हंस पड़े। सुफियान ने एक रिवायत में हंसने के बजाय मुस्कुराने का जिक्र किया है। इस जंग में अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु की एक आंख ज़ाया हो गई थी। वो इसको हाथ में लिए हुए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या चाहते हैं, इसके बदला में जन्नत में आँख लेना चाहते हैं या ये चाहते हैं कि मैं अल्लाह ताला से दुआ करूं और वो आपको आपकी आँख वापस कर दे। बोले मैं इसके एवज जन्नत में आँख लेना चाहता हूँ, और वो आँख उन्होंने फेंक दी। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला जंग यरमूक में लड़े और इसमें इनकी दूसरी आँख भी ज़ाया हो गई। हाफिज़ ज़ैनुद्दीन इराकी ने ये वाक़या जिक्र किया है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला को हुक्म दिया कि दर्जे ज़िक्र विर्द ज़ुबान बनाएं और इसी पर अपने अकीदा की बुनियाद रखें। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु सद्दक़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। अल्लाह ताला के बगैर कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, इसने अपना वादा पूरा कर दिया है, अपने बंदे की इमदाद फरमाई है और दुश्मन फौजों को अकेले ने शिकस्त दी है। जब वापसी के लिए कूच फरमाया तो हुक्म दिया अब ये कहो आइबूना आबिदूना रब्बिना हामिदून, हम वापस जा रहे हैं, अपने रब की इबादत करते हैं और इसी की हमदो सना बयान करते हैं। मुलाहिज़ा फरमाइए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाद के लिए निकलते तो मुमकिन हद तक भरपूर तैयारी करते, फौज के लिए जांबाज सिपाही भर्ती करते, सवारियों के लिए घोड़े और ऊँटों का इंतजाम फरमाते, सामान हरब दीगर आलात जहाद और राशन वगैरह जमा करते, लेकिन कामयाब होकर वापस लौटते तो इन तमाम असबाब से ला ताल्लुकी का इजहार फरमाते। तमाम फतूहात और कामयाबियों को महज अपने मौला करीम का फजल व एहसान समझते और फरमाते हज़्ज़मल अहज़ाब वहदहु, इस अकेले ने ही दुश्मन फौजों को शिकस्त दी है। और मज़कूरा बाला तमाम तैयारियों और तमाम असबाब की नफ़ी करते। और यही अल्लाह ताला पर हकीकी तवक्कुल का मानी है, क्योंकि इंसान और इसके अफ़ाल अल्लाह ताला की मखलूक हैं। वही खालिकुल मुदब्बिर है और वही अपनी किसी मखलूक के हाथ में जो चाहता है सरंजाम देता है। हर चीज़ में इसकी कुदरत जारी और सारी है और हर चीज़ की इंतहा भी इसी की तरफ है। अगर वो चाहे तो बगैर लड़ाई और बगैर किसी जंगी कार्रवाई के काफिरों को हलाक कर सकता है। चुनांचे अल्लाह ताला का इरशाद है वलो यशा अल्लाहु ला तंसर मिनहुम वलाकिन लियब्लुवा बाज़ुकुम बिबाज़, अगर अल्लाह ताला चाहे तो कुफ़ार से इंतकाम ले सकता है, लेकिन वो तुम्हारी एक दूसरे से आजमाइश करना चाहता है ताकि सब्र करने वालों को सवाब और शुक्रगुजारों को अजर अजीम से नवाजे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की गई कि आप अल्लाह ताला से सकीफ़ की हलाकत की दुआ मांगें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इलाही सकीफ़ को हिदायत अता फरमा और इनको हल्का बगोश इस्लाम बना दे। मज़कूर है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहासरा सकीफ़ के दौरान ख्वाब में देखा कि एक मक्खन का भरा हुआ प्याला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया। पहले इससे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ खाएं, एक मुर्ग ने चोंच मारकर इसको गिरा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु से इसका तज़किरा किया जो ख्वाब की ताबीरें बड़े माहिर और अरब में मशहूर थे। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इरादा के मुताबिक यहाँ कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा भी यही ख्याल है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहासरा उठा लिया और दहना करन अल मनाजिर और नखला से होते हुए जाराना तशरीफ़ लाए जो ताइफ की बनिस्बत मक्का मुकरमा के ज़्यादा नज़दीक है। इसी जगह आपने हुनैन की गनीमतें तकसीम की और इसी सफ़र में मक्का का मशहूर सरदार सफ़वान बिन उमैया हल्का बगोश इस्लाम हुआ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हवाज़न का 10 से कुछ ज़्यादा दिन इंतज़ार किया था, अगर वो मुसलमान हो जाएं तो इनकी गनीमतें वापस कर दी जाए, मगर वो ना आए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल तकसीम करना शुरू कर दिया और सबसे पहले मुअल्लफ़तुल क़ुलूब को दिया। ये लोग कुरैश और अरब के मुख्तलिफ कबाइल के सरदार और मुमताज़ शख्सियतें थीं। इस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु को 100 ऊँट दिए। एक रिवायत में आया है कि अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए जब नकदी और दीगर हर किस्म का माल व मता जमा था। वो देख कर कहने लगे या रसूलुल्लाह, आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश में सबसे ज़्यादा गनी और बड़े सरमायादार हैं, इस माल से हमारा हिस्सा हमें अता फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि इनको 100 ऊँट और 40 ओकिए चांदी दे दें। कहने लगे मेरे लड़के यजीद का हिस्सा भी दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको भी 100 ऊँट और 40 ओकिए चांदी दी। वो फिर बोले और मेरे बेटे मुआविया रज़ियल्लाहु ताला का हिस्सा भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको भी 100 ऊँट और 40 ओकिए चांदी देने का हुक्म दिया। इस तरह इस दिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला ने 300 ऊँट और 120
ओकिए चांदी हासिल की। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई और सुलह में बेहद करीम है। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जज़ाए खैर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत इंतहा को पहुंची हुई है। आपने सफ़वान बिन उमैया को भी 100 करके 300 ऊँट दिए। इसी तरह शफा में मज़कूर है हकीम बिन हज़ाम को 100 ऊँट दिए तो उन्होंने मज़ीद 100 ऊँट का मुतालबा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका वो मुतालबा भी मंजूर कर लिया और इनको मज़ीद 100 ऊँट दे दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरजेल कुरैशी और गैर कुरैशी मुसलमान सरदारों को 100 ऊँट दिए। अब्दुद्दार में से हारिस बिन कलदा अल्लाह ताला और इसके रसूल के दुश्मन नदर बिन हारिस के भाई, अबू जाल के भाई हारिस बिन हशाम मखज़ूमी, अब्दुर्रहमान बिन यरबू मखज़ूमी, सुहेल बिन उमरू और हलतीब बिन अब्दुल उज़्ज़ा, अला बिन हारसा सकफी। बाद ने इनको इन लोगों में शुमार किया है जिनको 50 ऊँट मिले थे। अकरा बिन हाबिस तमीमी, ऐनिया बिन हसन फजारी, मालिक बिन औफ, नदरा दर्जेल गैर कुरैशी सरदारों को 100 से कम ऊँट दिए। मखज़मा बिन नौफल, हमीर बिन वहब, बनु आमिर बिन लोवी के सरदार हशाम बिन अमरू इब्ने इसाक लिखते हैं, मुझे याद नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कितने ऊँट दिए, मगर 100 से कम ही थे। सईद बिन यरबू मखज़ूमी, अदी बिन कैस सहमी और उस्मान बिन नौफल को 50 ऊँट मिले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बास बिन मरदास को 100 से कम ऊँट दिए थे, जिससे वो नाराज़ हो गया और मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक इसने ये अशार कहे, आप मेरी और मेरे घोड़े उबैद की हासिल की हुई गनीमत एनिया और अकरा को देते हैं। इन दोनों के बाप बदर और हाबिस मेरे बाप मरादिस पर किसी मजमा में कोई फोकियत नहीं रखते थे और मैं खुद इन दोनों में से किसी से कम नहीं हूँ। जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज नीचा कर देंगे वो कभी ऊंचा नहीं होगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी 100 ऊँट दे दिए। इब्न इसाक की रिवायत में ये लफ्ज़ ज़्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको 100 ऊँट देकर इसकी ज़बान मुझसे बंद करो। और जिन लोगों को आपने 50 से कम ऊँट दिए इनके नाम ये हैं। नंबर 1 तरीक बिन सफियान बिन उमैया बिन अब्द शम्स। नंबर 2 खालिद बिन असीद बिन अबिल आस बिन उमैया। नंबर 3 शीबा बिन उस्मान बिन अबी तलहा। ये वही हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेखबरी में कत्ल करना चाहा था, जैसा कि इसकी तफसीर पहले गुजर चुकी है। नंबर 4 बनु अब्दुद्दार से अबुल सनाबिल बिन बाकक बिन हारिस। नंबर 5 ज़हीर बिन अबी उमैया मखज़ूमी, ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के भाई हैं। नंबर 6 खालिद बिन हशाम बिन मुगैरा मखज़ूमी। नंबर 7 साइब बिन अबी साइब मखज़ूमी। नंबर 8 बनु अदी में से मुती बिन असवद। नंबर 9 अबू जहम बिन हुज़ैफा अदवी। नंबर 10 हैया बिन अदी बिन खल्फ जमही। नंबर 11 नौफल बिन मुआविया, ये बनु बकरा बिन अब्द मन्नात से ताल्लुक़ रखते हैं। नंबर 12 अलकमा बिन अलासा बिन औफ। नंबर 13 खालिद बिन हौज़ा। नंबर 14 हशाम बिन वलीद, खालिद बिन वलीद के भाई। नंबर 15 अब्दुल असद बिन हल्लाल मखज़ूमी। आपके किसी सुहाबी ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐनिया बिन आसन और अकरा बिन हाबिस को 100 ऊँट दे दिए हैं और जहील बिन सराका ज़मरी को कुछ भी नहीं दिया। इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस खुदा की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, ऐनिया जैसे आदमियों से ज़मीन भरी हुई हो तो इनसे अकेला जहील बिन सराका बेहतर है। मैंने तारीफ़ कल्ब के लिए इनको इतने ऊँट दिए हैं ताकि वो इस्लाम कबूल कर लें और जहील रज़ी अल्लाह ताला को इसके इस्लाम के सपुर्द किया है। सहीहैन में अब्दुल्ला से रिवायत है और ये लफ्ज़ मुस्लिम के हैं। हुनैन की जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल तकसीम करते वक्त कुछ लोगों को ज़्यादा माल दिया, चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकरा बिन हाबिस को 100 ऊँट दिए। इस तरह ऐनिया को भी इतने ऊँट दिए। अरब के दूसरे मुमताज़ आदमियों से भी तरजीही सलूक किया। ये देख कर एक आदमी ने कहा, इस तकसीम में अदल इंसाफ से काम नहीं लिया गया और ना इसमें अल्लाह ताला की रजामंदी का ख्याल रखा गया है। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं, मैंने कहा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर दूंगा। चुनांचे मैंने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त नाराज़ हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया और यहाँ तक कि मैंने आरजू की कि काश मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात न बताता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला और उसका रसूल अदल नहीं करेगा फिर कौन अदल करेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम फरमाए, इनको इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ दी गई थी और उन्होंने
से काम लिया था। अब्दुल्ला कहते हैं इसके बाद मैंने फैसला कर लिया आइंदा मैं इस किस्म की कोई खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं लूँगा। सही मुस्लिम में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, हुनैन से वापसी के बाद जराना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया। इस वक्त बिलाल रज़ी अल्लाह तआला के दामन में कुछ माल था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मुट्ठी भर भर कर लोगों को दे रहे थे। वो बोला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल से काम ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुझ पर अफसोस हो, जब मैं अदल नहीं करता तो अदल कौन करेगा? यकीनन मैं घाटे में पड़ा और खसारे में रहा अगर मैंने अदल नहीं किया। उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इजाज़त हो तो बस मैं इस मुनाफिक को कत्ल कर दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माज़ अल्लाह, लोग कहेंगे मैं अपने साथियों को कत्ल करता हूँ और ये इसके साथी कुरान पढ़ेंगे लेकिन वो इनके हलकों से नहीं गुजरेगा। ये इस्लाम से इस तरह निकल जाएंगे जिस तरह तीर शिकार से निकल जाता है। इब्न इसाक रहमतुल्लाह की रिवायत में है अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं बनु तमीम का एक आदमी आया जिसको जुल्खुवैसर कहा जाता था। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में माल तकसीम कर रहे थे। वो खड़ा देखता रहा, फिर कहने लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज जो कुछ आप कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे क्या करते देखा? बोला मैंने देखा है, क्या आपने इंसाफ नहीं किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम पर अफसोस है, अगर मेरे पास इंसाफ नहीं तो इंसाफ किसके पास होगा? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा क्या हम इसको कत्ल ना कर दें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, इसको रहने दो, इसके साथ एक जमात होगी जो दीन के बारे में तशद्दुद करते करते इससे इस तरह निकल जाएगी जैसे तीर शिकार के जिस्म से निकलता है। इसके फल में देखते हैं तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती, फिर इसकी लकड़ी में देखते हैं तो इसमें भी कोई चीज़ नहीं मिलती, फिर फोक में देखते हैं तो इसमें कुछ नज़र नहीं आता, हालांकि वो खून और गोबर से होकर निकलता है। सहीहैन में अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हुनैन फतह किया तो गनीमत मुअल्लफ़ा क़ुलूब में तकसीम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि अंसार भी चाहते हैं कि जो कुछ दूसरे लोगों को मिला है इनको भी मिले, और सही बुखारी में है जैसे वो नाराज़ थे कि जिस तरह दूसरे लोगों को गनीमतें मिली हैं इनको क्यों नहीं मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर इनको खिताब किया और अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद फरमाया ए जमात अंसार, क्या ये हकीकत नहीं कि तुम गुमराह थे, मेरी वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हें जमा कर दिया। और वो कहते थे अल्लाह ताला और इसके रसूल का हम पर बहुत एहसान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम मुझे जवाब क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा अल्लाह ताला और इसके रसूल का हम पर बहुत एहसान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम चाहो तो कह सकते हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ऐसा था और हमारी वजह से ऐसा ऐसा हो गया और ये हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई चीज़ें जिक्र की जो उम्र को याद नहीं रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम्हें ये पसंद नहीं कि लोग ऊँट और बकरियां लेकर जाएंगे और तुम अपने घरों में अल्लाह ताला के रसूल को लेकर जाओगे? लोग वरसा में और अंसार शहर में अगर हिजरत न होती तो मुझे अंसार का आदमी बनना पसंद था। अगर लोग किसी वादी और किसी घाटी की तरफ चलें और अंसार दूसरी वादी और दूसरी घाटी की तरफ चलें तो मैं इसी वादी और इसी घाटी की तरफ चलूँगा जिसकी तरफ अंसार चलेंगे। मेरे बाद तुम पर दूसरों को तरजीह दी जाएगी। इस वक्त सब्र से काम लेना यहाँ तक कि तुम मुझसे हौज पर आकर मिलो। और सहीहैन में अनस रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत है अंसार में से कुछ लोगों ने कहा अल्लाह ताला अपने रसूल को माफ़ फरमाए, आप माल कुरैश को देते हैं और हमें नज़रअंदाज करते हैं, हालांकि अभी तक हमारी तलवारों से इनके खून के कतरे गिर रहे हैं। अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका तज़किरा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको चमड़े के खैमा में जमा किया। जब सब जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और इनसे पूछा वो क्या बात है जो मुझे तुम्हारी तरफ से पहुंची है? अक्लमंद अंसार ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे समझदारों ने तो कुछ नहीं कहा, अलबत्ता बेसमझ नौजवानों ने ज़रूर कहा है अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माफ़ फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश को देते हैं और हमें महरूम रखते हैं, हालांकि अभी तक हमारी तलवारों से इनके खून के कतरे टपकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं उन लोगों को देता हूँ जो अभी अभी कुफ्र को छोड़कर इस्लाम लाए हैं, मेरी गरज तालीफ़ कल्ब है। क्या तुम इस पर राज़ी नहीं कि लोग माल लेकर जाएं और तुम अपने घरों में अल्लाह ताला के रसूल को लेकर जाओ? बखुदा जो चीज़ तुम लेकर जाओगे वो इससे बदरजहा बेहतर है जो वो लेकर जाएंगे। अंसार ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इस पर राज़ी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद तुम्हें सख्त किस्म की कुंबा परवरी का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त सब्र से काम लेना हत्ता कि तुम अल्लाह ताला और इसके रसूल से आ मिलो, मैं तुम्हें हौज पर मिलूँगा। वो बोले हम ज़रूर सब्र से काम लेंगे। अनस रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं लेकिन वक्त आने पर वो सब्र न कर सके। इब्न इसाक अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह से रिवायत करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक ग्रोह अंसार तो मुझे
تم مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ وہ بولے یا رسول اللہ ہم آپ کو کیا جواب دیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ہی ہم پر فضل و احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو اور تمہاری یہ بات غلط بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی تکذیب کے بعد ہمارے پاس آئے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، آپ بے یار و مددگار تھے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکالے گئے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھروں میں جگہ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلاش اور محتاج تھے اور ہم نے اپنے مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیے۔ اے گروہ انصار، کیا تم خسی دنیا کی وجہ سے ناراض ہو گئے جو میں نے بعض لوگوں کو تعریف قلب کی غرض سے دی ہے تاکہ ہلکا بگوش اسلام ہو جائیں اور تمہیں تمہارے پختہ اسلام کے سپرد کیا ہے؟ اے گروہ انصار، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے رسول کو لے کر جاؤ؟ اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر میں نے ہجرت نہ کی ہوتی تو میں انصار کا آدمی بننا تھا۔ اگر لوگ ایک گھاٹی کی طرف چلیں اور انصار دوسری گھاٹی کی طرف چلیں تو میں انصار کی گھاٹی کی طرف چلوں گا۔ الہی انصار کے بیٹوں اور ان کے بیٹوں کے بیٹوں پر رحم فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سن کر اس قدر روئے کہ آنسوؤں سے ان کی داڑیاں تر ہو گئیں اور وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم راضی ہیں کہ ہماری قسمت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور لوگ بھی اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ اللہ حافظ۔